Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Morning, sir. Okay, so what all things we have learned in Power BI service as of now? Anybody? So we have learned about how we can publish the report in the Power BI service. Okay. We have learned about how to import the reports from the service, and we have learned about the automations, refresh automation and on-demand automation, on-demand refresh. Mm, We have learned about how we can create parameters and how we can change the uh, report from one environment to other environment. We okay. have learned about how we can manage roles, and we have learned about how the different roles what are their works they can do. Like for about if an admin, he can add or remove the users, and he can set the which user should play which role, like that. Mm, right. So basically, we have learned how to publish the report. We have learned how to deploy the report from one environment to another environment. We have learned how to automate the report. And we have learned few ways to share the report. Okay. वर्कस्पेस पे ऐड करके हम शेयर कर सकते हैं रिपोर्ट, या फिर डायरेक्ट लिंक शेयर करके भी हम लोग रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं. राइट. Yes, sir. Any questions still now? No, sir. Sir, there was one question for me. Mhm. So, like, you have a data set in SQL, and you have another data set and in Excel, right? Mhm. Sir, for those kind of situations, sir, Mhm. how we can create the parameters, and what are the things which, matlab, sir, you have said we have to give the parameters or give the automation in each table, right? Mhm. After creating the parameter. Sir, if we have two different databases, then how we can give the parameters in that Same thing, situation? no. Same thing, no. If suppose आपके पास टेबल 1 है जो कि SQL में है, ठीक है. Okay. टेबल 2 है जो कि Oracle में है. राइट. Yes, तो sir. अगर टेबल 1 आपका SQL डेव में है, आपका सेम टेबल आपका मतलब यूएटी का टेबल, प्रोडक्शन का टेबल भी तो SQL में ही होगा, राइट. Yes, sir. तो आप SQL का मतलब यू मे हैव टू क्रिएट टू डिफरेंट सर्वर नेम्स, टू डिफरेंट पैरामीटर नेम, जैसे कि Sir. यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट. Yes, sir. तो ये एक टेबल आ रहा है SQL से, SQL डेव से. ओके. ये Okay, मेरा sir. सर्वर है and this is the dev environment. Similarly, I have SQL सर्वर का ही UAT है, SQL सर्वर का ही प्रोडक्शन. Okay. Similarly, I have another table. Which is coming from Oracle. Right. Yes, sir. Yes, sir. अभी जब आप रिपोर्ट डेवलप करोगे क्या करोगे?
You will take the table from here. You will take the table from here and you will develop the report. Yes or no? यस सर। बट सर इसके लिए रिलेशनशिप वगैरह भी पूरा क्रिएट हमको मैनुअली करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक तो कर नहीं पाएगा, अगर करा भी Automatic तो। कभी भी नहीं करना है. Okay, even though you are taking everything from one SQL server only, still you should not use that automatic relationship. आपको अगर वो automatic होता है, all those things you need to delete and do it by yourself. क्योंकि जब automatic होता है, it may pick any column. यस सर। Okay, you need to do it manually. Better आपको पहले से ही क्या करना चाहिए? I think I have showed you. फाइल में जाना है, ऑप्शन सिंथेटिक्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, फिर ग्लोबल में रिपोर्ट सेटिंग्स में जाना है, डेटा लोड, हाँ डेटा लोड, करंट फाइल में डेटा लोड में जाना है. यहाँ पे जो ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप्स आफ्टर डेटा इज लोडेड को डिसेबल करना है. ओके, नीड टू डिसेबल दिस एंड क्लिक ऑन ओके, ताकि ऑटोमेटिक रिलेशनशिप ना बने, आपको खुद से बनाना है. When you know what is primary key, what is foreign key, you can do by yourself, right? यस सर। Right. तो आप क्या रिपोर्ट कैसे डेवलप करोगे? अगर दो टेबल दो डिफरेंट डेटा सोर्सेस से है, आप उसका डेव का टेबल लोगे, इसका डेव का टेबल लेके आप रिपोर्ट बनाओगे, राइट? तो अभी इसको यूएटी में मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीक्वल सर्वर के लिए आप एक पैरामीटर बनाओगे, सर्वर 1 का एक पैरामीटर बनाओगे, डेटाबेस 1 का एक पैरामीटर बनाओगे. सिमिलरली इसके लिए आप और दो बनाओगे, सर्वर 2 का एक, डेटाबेस 2 का एक, 4 पैरामीटर बनाओगे. जब ये टेबल को आपको यहाँ से मूव करके यहाँ करना है, तब आप क्या करोगे? यहाँ पे यूएटी का सर्वर नाम दोगे और यूएटी का डेटाबेस नाम दोगे. ये Yes, अभी sir. तक यहीं से है. अगर इसको भी आपको यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो इसका सर्वर नेम, इसका डेटाबेस नेम चेंज करोगे. तो ऑब्वियसली आपका डेटा, मतलब ये टेबल भी यूएटी में मूव हो जाएगा, ये टेबल भी यूएटी में मूव हो जाएगा. यस सर। Okay. ओके, वंस आप जब डेटा लोड करोगे, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितना पैरामीटर्स बनाना है. जो चीजें चेंज होने लगेंगे उसको, उसके लिए आपको पैरामीटर बनाना पड़ेगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से चीज चेंज होने वाले हैं. इफ आई एम मूविंग फ्रॉम डेव टू यूएटी, व्हाट आर द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज? इसके लिए दो चेंज होंगे, इसके लिए दो चेंज होंगे. सो टोटल यू मे नीड 4 पैरामीटर्स. फॉलोइंग? यस सर। Yes, sir. राइट. सर, तो इट इज कंपलसरी दैट एक ही सर्वर में डेव, यूएटी और प्रोडक्शन तीनों को डेटा That is the architecture. That is the ओके सर. minimum thing what database people will do. ओके सर. That is तो mandatory. उसके बाद मतलब इससे होने से अभी आप जब बताया जो डेव के लिए सर्वर 1 डेटाबेस 1 बनाए, यूएटी के लिए अभी सर्वर 2 डेटाबेस 2 मतलब अलग अलग बनाएंगे ना? नहीं, फोर्स के लिए आप बनाओगे, ये यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए यू विल जस्ट चेंज द सर्वर नेम एंड डेटाबेस नेम, राइट? यस सर. हाँ, तो आपने जो पैरामीटर, अभी इसका सर्वर नेम ये है, डेटाबेस नेम db1 है, यस इसका सर. सर्वर नेम b है, और डेटाबेस नेम db2 है, इसका सर्वर नेम c है, और डेटाबेस नेम db3 है. सो आपने एक पैरामीटर बनाया. ओके, सर्वर के लिए एक पैरामीटर, डेटाबेस के लिए एक पैरामीटर. व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम यूएटी टू प्रोडक्शन, आप क्या करोगे? यहाँ पे पहले अभी b है, db2 है, राइट? क्योंकि आई एम कनेक्टेड टू यूएटी. इफ यू यस सर. वांट टू मूव द टेबल फ्रॉम यूएटी टू प्रोडक्शन, व्हाट यू नीड टू डू? In the So place we of have b, you will to put change the c. name. In the place of db2, you will do db3. Yes, sir. Similarly, यहाँ पे भी वैसा ही है. abc, maybe this server name is d, this server name is e, this server name is f. So if you, now it is connected to e. If you want to move this from UAT to production, आप क्या करोगे? e के जगह पे f दोगे, right? That is how it Yes, will Yes, sir. right? yes, sir. तो पर
Each data source you will create the required parameters. Each data source you will create the required parameters. ठीक है? ओके सर। सर एक डेटा सोर्स के लिए मिनिमम 2 ही पैरामीटर्स बना सकते हैं या फिर उससे ज्यादा बना सकते हैं? It depends. ऐसे कैसे बोल सकते हैं? We cannot say. Generally, it can be 2. It can be 3 also. It can be 4 also. For example, मेरा कोई सर्वर है, SQL सर्वर नहीं, स्नोफ्लेक है। स्नोफ्लेक के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे सर्वर नाम चाहिए, डेटाबेस नाम चाहिए, रोल चाहिए, वेयरहाउस चाहिए। सो ये चारों चीज इसके लिए कनेक्ट करने के लिए भी चाहिए, ये चारों चीज इसके लिए भी कनेक्ट करने के लिए चाहिए। सो आई मे हैव टू क्रिएट 4 डिफरेंट पैरामीटर्स हियर। ओके सर। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू चेंज। अगर चेंज करने के लिए एक इफ यू आर चेंजिंग ओनली द डेटाबेस नेम, आपको एक पैरामीटर से काम हो जाएगा। If you are changing 5 different things, you may have to create 5 different parameters. ओके सर। But majorly it will be 2 only. That's what I am saying. सर पैरामीटर जो क्रिएट करना रहेगा ये डिपेंड करता है हमारा सर्वर कौन सा है, आई थिंक वो डिपेंड करता है व्हाट आर द वेरिएबल्स। एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट मूव करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स वी आर चेंजिंग। आप कितने चीजें चेंज कर रहे हो, जितने चीजें चेंज करना पड़ता है उतना पैरामीटर्स बनाना पड़ता है। ओके, एनीथिंग एल्स? Okay, now let's see the third way of sharing the report, that is create apps. Okay, हमने शेयर करने के 2 तरीके देखे हैं। एक क्या देखा है, डायरेक्टली you can share the report link, and the second one what we have seen, we can give Workspace. access to the workspace, and the third and most important way to share the report is create apps. Okay, how to create an app? Let's see. It's a simple one only. Okay, so let's go to any one workspace. Here we have 2 different reports, right? एक June RLS है, एक Sales Analytics है. Let's see any other workspace जहाँ पे ज़्यादा report है. Here also we have only one. Okay, if you see here I have so many reports. ठीक है, एक workspace है जिसका नाम है Sales Analytics Dev है. Okay, यहाँ पे we have so many reports. COVID analysis है, DAX है, RLS है, Sales Analytics है. We have 4 different reports are there, right? अगर if I want to share all the 4 reports to multiple people, okay, there are so many people are there जिनको ना चारों रिपोर्ट के एक्सेस चाहिए या फिर 3 रिपोर्ट का एक्सेस चाहिए, कोविड एनालिसिस का चाहिए, डैक्स का चाहिए, आरएलएस का चाहिए। तो व्हाट आर द वेज टू शेयर द रिपोर्ट? अभी तक जितना हमने सीखा है, सर डैट सेल विद लिंक और हाँ वर्क स्पेस में ऐड कर देंगे। हाँ, Link- तो link अगर से- आप अगर आप डायरेक्टली लिंक शेयर कर रहे हो, आपको 4 डिफरेंट लिंक यू नीड टू शेयर और 3 डिफरेंट लिंक यू नीड टू शेयर, राइट? Yes, sir.
फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस वर्कस्पेस में 10 रिपोर्ट है, उसमें से 5 या 6 रिपोर्ट शेयर करना है, तो यू नीड टू शेयर 6 डिफरेंट लिंक्स, राइट? यस Yes, sir. Which is very difficult for him to manage. Yes or no? Yes, sir. So that is not the right way to do. ठीक है, हम लोग अगर वर्कस्पेस का एक्सेस उसको देते हैं तब क्या होगा? What is the problem then? सारी रिपोर्ट देख पाएगा, 10 में Yes, से हमको sir. केवल 5 हाँ। ही दिखानी है। हाँ, तो सारे रिपोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा उसको, बट वी डोंट वांट टू शो अदर 5, राइट? वी वांट टू शो ओनली द फर्स्ट 5. Yes, sir. That is also a problem, right? So better way is we can create an app. I think already there is an app created here. Let me remove it. ऐप क्या होता है, मतलब ऐप जो वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक वर्कस्पेस में यू विल सी सम वन ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट ऐप करके होगा। ठीक है, व्हेन यू गो टू एनी वर्कस्पेस, कोई भी वर्कस्पेस आप जाओगे, आपको राइट साइड टॉप में आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रिएट ऐप, राइट? यस नो? Right, sir. Yes, sir. यस Yes, तो sir. आपको क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट ऐप, ओके? और इस ऐप का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल सेल्स एनालिटिक्स आई एम गिविंग, ओके? समरी में आप बोल सकते हो इसमें कौन से रिपोर्ट्स है, you can put it or you can skip it, okay? Just I am giving the same name. उसके बाद यहाँ पे you want to give some logo and all, generally nobody will do all these things, okay? Just we will give the name of the app. उसके बाद we will go to step number 2. Step 1 हो गया, सेटअप कर रहे हैं, आपका नेम हमने दे दिया, कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पे ऐड कंटेंट में जाने के बाद हियर आपके वर्कस्पेस में जितने सारे रिपोर्ट्स है एवरीथिंग विल बी शोन हियर। ठीक है, जिस वर्कस्पेस में आप ऐप क्रिएट कर रहे हो उस वर्कस्पेस में जितने सारे रिपोर्ट्स है एवरीथिंग विल शो अप हियर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसमें से आपको कौन से रिपोर्ट शेयर करने हैं एंड यूजर के साथ, आपको बस यू नीड टू सेलेक्ट देम। ठीक है, Okay, sir. एंड देन क्लिक ऑन ऐड। ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड, ओके, तो आपने यहाँ पे 3 रिपोर्ट ऐड कर दिया। यू विल गो टू आई थिंक सम इंटरफेस हैज बीन चेंज, जनरली पहले यहाँ पे भी दिखा रहा था, अभी नहीं दिखा रहा है, दैट्स फाइन। COVID, DAX and sales analytics. Okay, ऐसा, it should come like this. Okay, so when you add the content, you will see कि आपके वर्कस्पेस इस ऐप के अंदर what are the reports you are trying to add. So these are the 3 reports I am trying to add. ठीक है, इसके अंदर I have these many pages. Okay, COVID analysis के अंदर these many pages I have. Similarly, DAX के अंदर these many pages I have. Similarly, sales analytics के अंदर I do not have any page, it's a single page report. Okay, जो भी है I have added everything into my content. उसके बाद audience में जाना है और यहाँ पे specify users और groups, ये जो रिपोर्ट्स है, ये 3 रिपोर्ट्स है, आप किस किस के साथ शेयर करना चाहते हो, those email IDs you need to mention here, या फिर you can ask for a group email ID, that is the best way. ओके, आपको किसके साथ, मतलब इफ यू वांट टू शेयर विद 1000 मेंबर्स, व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क देम टू क्रिएट ए ग्रुप ईमेल आईडी विद दोस 1000 मेंबर्स एंड दे शुड प्रोवाइड यू द ग्रुप ईमेल आईडी। आपको वो उस ग्रुप ईमेल आईडी को यहाँ पे यू नीड टू पुट इट हियर एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन पब्लिश ऐप। राइट नाउ मेरे पास ग्रुप ईमेल आईडी नहीं है, सो आई एम क्लिकिंग ऑन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम क्लिकिंग। ऑर्गेनाइजेशन में सर वही, मतलब जो एट द रेट और के ये बाद चिकन वाला होता है। खाइएगा। हाँ हाँ हाँ, इट इज नॉट कमिंग। ठीक है, आई विल गिव वन ईमेल आईडी।
नीचे वो पब्लिश ऐप का आइकॉन हाईलाइट होना चाहिए. ओके, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग. लेट्स ट्राई इट अगेन. ହଁ ଥାଉ ଥାଉ କହିଲି ମୁଁ ଲଗେଇବିନି ଏବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ Sir, shall I share my temporary mail? नो, दैट विल नॉट वर्क. ये जो अकाउंट अलग है, आपका अलग होगा. ठीक है, इट विल नॉट वर्क इन दैट वे. Okay, sir. But still this should come. Why it is not coming? डोमेन नेम सेम होगा सर तभी पब्लिश होगी क्या? हाँ. Let us go to a different workspace. Like this it should come. Why it was not coming there? Let us go back and see. ओके, राइट. ओके, पब्लिश आप आ रहा है, राइट. तो आप यहाँ पे जिसके साथ आपको शेयर करना है ये तीनों रिपोर्ट, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है. और उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक ऑन पब्लिश ऐप. तो आपका ऐप क्रिएशन हो जाएगा, उसका एक लिंक जनरेट होगा. तो इस लिंक को आप उनके साथ शेयर करना है. सो व्हेन यू शेयर दिस लिंक विद देम, they will, when they open this link, what will happen, in a single link they will see all the 3 reports. ठीक है, इफ यू सी यहाँ पे ये पहला वाला मेरा कोविड एनालिसिस है, इसके अंदर मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, राइट. नॉर्मली हम लोग जैसे यूज करते हैं, इन द सेम वे वी कैन यूज दिस वन. ठीक है. इफ आई वांट टू गो ए डिफरेंट रिपोर्ट, इट इज आल्सो अवेलेबल हियर इटसेल्फ. If I want to go to a different report, it is also available here itself. इसका मतलब क्या है, एक ही लिंक के अंदर I have all the 3 reports with all the pages. Right? Yes, sir. yes sir yes. Okay, this is how we generally create an app and share with the end user. This is the best way to share the report. Yes. एक और सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये 3 रिपोर्ट है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 10 different reports. Okay, मेरे पास 10 different reports है. इसमें से these 3 I want to share with only the marketing team. ठीक है. Okay, sir. okay sir These 3 I want to share, या फिर these 2 and this one. These 3 I want to share it with a HR team. HR report है. ठीक है. okay These 4 I want to, these 3 I want to share it with maybe these 2. These 2 and this one. These 3 I want to share it with the operations team, for example, या finance team, जो भी है. और एक रिपोर्ट मैं किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता हूँ. Clear? yes sir Is the requirement clear? yes sir Everybody? Yes. yes sir बट now what- मैनुअली हो पाएगा जहाँ तक. नहीं, मैनुअली नहीं करना. आई विल टेल यू. ओके. सो अगर यहाँ पे हम लोग ऐप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सारे रिपोर्ट वी आर शेयरिंग विद एवरीबडी, राइट, हम्म. इन yes ए sir सिंगल लिंक. बट व्हाट वी Okay, कैन sir. डू हियर, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सेटअप में जाओगे और नाम दोगे, कंटेंट में जाओगे, यू विल ऐड ऑल द रिपोर्ट्स. ओके, मतलब ये सारे 10 रिपोर्ट में 10 नहीं 8 रिपोर्ट, राइट, क्योंकि रिपोर्ट 8 वी डोंट वांट टू शेयर, राइट. So the 9 reports I will add it in the content.
फॉलोइंग? यस Yes. उसके बाद ऑडियंस में जाने के बाद व्हाट आई विल डू, फॉर एग्जाम्पल इन द करेंट सिनेरियो, ये जो कोविड एनालिसिस है ये मार्केटिंग टीम के साथ मुझे शेयर करना है, ये जो डैक्स है ये एचआर के साथ शेयर करना है, और ये जो सेल्स एनालिटिक्स है मुझे फाइनेंस टीम के साथ शेयर करना है। ओके, मतलब मार्केटिंग Yes. people should not be able to see these two reports, Action. HR people should not be able to see COVID analysis and sales analytics, finance Yes. people should not be able to see the first two reports. Yes, sir. Requirement clear? Yes, sir. Yes. तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? Sir, we can click on that I option for hiding those. Okay, let me complete. Okay, sir. तो पहला क्या है, मार्केटिंग टीम के लिए आई वांट टू शेयर द कोविड एनालिसिस बट आई डोंट वांट टू शेयर दीज टू थिंग्स, सो व्हाट आई विल डू, विच एवर आई डोंट वांट टू शेयर आई विल हाइड देम। ठीक है, ऐसा नो? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes. एंड देन ये जो ऊपर यहाँ पे जो नाम है यहाँ पे डबल क्लिक करके आई कैन चेंज द नेम, आई विल से दिस इज Yes, फॉर sir. HR मार्केटिंग पीपल। marketing team. Yes, sir. ओके, उसके बाद एक और नया ऑडियंस बनाऊंगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मार्केटिंग के लिए एक ही रिपोर्ट दिखाना है, और मार्केटिंग का ग्रुप ईमेल आईडी आई विल ऐड इट हियर, ओनली मार्केटिंग पीपल हु वांट्स टू शेयर, हु वांट्स टू सी दिस रिपोर्ट, राइट, उनका ग्रुप ईमेल आईडी आई विल प्लेस इट हियर। टिल नाउ क्लियर? Yes, sir. उसके बाद आई विल क्रिएट ए न्यू ऑडियंस, ये किसके लिए है, ये एचआर के लिए है। Yes, sir. Clear. ओके, मुझे एचआर के लिए कोविड एनालिसिस नहीं दिखाना है, सेल्स एनालिटिक्स नहीं दिखाना है, बस ये डैक्स वाला रिपोर्ट ही दिखाना है, राइट, जो भी नहीं दिखाना है दैट वन वी विल हाइड इट। Yes, sir. Clear? And then I will put the HR email, group email ID here. Following? Yes, sir. Yes, sir. Then I will create another audience for finance people. अभी ये नहीं दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, बस ये वाला दिखाना है। So I will keep this one open, other two I will hide it, and then I will put the group email ID of finance. ठीक है? Like this I can create multiple audience based on the requirement. किसको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, and then I will update the app. अभी क्या होगा, when I do this one and share the link with everybody, same link मैं मार्केटिंग वालों के साथ भी शेयर करूंगा, HR के साथ भी शेयर करूंगा, फाइनेंस के साथ भी शेयर करूंगा, बट जब वो ओपन करेंगे मार्केटिंग वालों को सिर्फ ये वाला टैब दिखेगा, मतलब दे कैन सी ओनली द कोविड एनालिसिस रिपोर्ट। HR वालों को सिर्फ ये वाला टैब दिखेगा, मतलब दे कैन सी ओनली द डैक्स रिपोर्ट। फाइनेंस वाले को सिर्फ ये वाला टैब दिखेगा, ये तीनों नहीं दिखेंगे, so they will see only the sales analytics. But for example, there is a person who belongs to marketing also, finance also. Okay, वो दोनों में है, उनको उसको दोनों रिपोर्ट देखना है, तो सेम प्रोसेस, नथिंग चेंज। यहाँ पे मार्केटिंग ग्रुप में अगर वो होगा तो ये टैब दिखेगा, फाइनेंस टैब के ग्रुप में, फाइनेंस ग्रुप में होगा तो ये टैब दिखेगा, तो ये दोनों टैब उसके लिए दिखेंगे, सो ही कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर और हियर टू हियर। अच्छा, मतलब उसका ईमेल आईडी जो होगा सर वो दोनों ग्रुप में ऐड होना दोनों चाहिए। ग्रुप में ऐड होना Yes, चाहिए। sir. ठीक है सर। क्लियर? Yes, sir. ओके, दिस Yes, इज sir. द करेक्ट वे टू शेयर द रिपोर्ट। ओके, और सर जब जो रिपोर्ट शेयर हो चुका है उस पर हम कैसे देख सकते हैं कि मतलब हमने किसको किसको एक्सेस दिए थे, एडिट वगैरह का कुछ ऑप्शन तो रहता ही है, जैसे अभी हमने दिखाया शायद। वहां पे रहता है ना, वो एक्चुअली एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग देखे थे वहां पे मैनेज रोल्स करके एक ऑप्शन है हमारा ऑलरेडी पावर बीआई सर्विस के इंटरफेस में, वो सब एडमिन का पार्ट रहेगा। वो जिसको मैनेज मतलब एडमिन का रोल देना है क्वेश्चन या क्या है, फिर क्वेश्चन developer क्या है, देना फिर है। से पूछो। तो जैसे हमने रिपोर्ट शेयर कर दिया, ठीक है, मान के कैसे शेयर चलो किया? ये ऐप के थ्रू, ओके, हाँ, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मुझे लगता है कि एचआर की जो रिपोर्ट है, एचआर को नहीं, मार्केटिंग टीम में एचआर को भी होनी चाहिए, मार्केटिंग टीम को भी होनी चाहिए, मान के चलो एज एग्जाम्पल। तो अभी तक सर मैंने एचआर का ग्रुप मतलब मेल डाला हुआ था, अभी मेरे को मार्केटिंग का भी डालना पड़ेगा, तो वहां पर
एडिट वगैरह का ऑप्शन होगा, ये चीज पूछ रहा था। नहीं, ग्रुप, इसीलिए तो ग्रुप ईमेल आईडी बोल रहा हूँ ना। आप ग्रुप ईमेल आईडी मुझे दोगे, ओके। अगर कोई बंदा दोनों टीम में होना चाहिए, आपको उसको दोनों ग्रुप में डालना है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप मई बैच में हो, सॉरी हम्म जून बैच में हो अभी, तो मैं हम्म आपको जून बैच के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको जून बैच का व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर रहा हूँ, ओके। हम्म मगर आपको मई बैच का भी एक्सेस चाहिए, तो आपका ही नंबर मैं मई बैच में भी ऐड कर दूंगा, राइट। यस उसके लिए मैं अलग कुछ नहीं बनाऊंगा। तो मैं आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली दोनों ग्रुप में मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। यस सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। मैं दो ग्रुप ईमेल आईडीज है, एक एचआर के लिए है, एक मार्केटिंग के लिए है। अगर आप दोनों ग्रुप में होना चाहते हो, देन यू शुड बी इन बोथ द ग्रुप्स। बोथ ग्रुप ईमेल आईडी में आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। यस। और Yes? तो जैसा ईमेल शेयर करते होंगे, मतलब ऐड करते होंगे, तो हम्म। इसमें मेल वगैरह जाता होगा सब जो भी लोग ऐड होंगे उस ग्रुप ईमेल पे। वो लोग टिकट खुद रेज करते हैं ना, कि मुझे इस एक्सेस चाहिए। आपको एक अच्छा। टिकट रेज करना पड़ेगा, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा एंड यूजर के लिए, आपके लिए नहीं। एंड यूजर को वो डॉक्यूमेंट देके वो खुद अपना टिकट रेज करेगा। जो प्रोसेस के हम्म हिसाब से जैसे अप्रूवल्स मिलते रहेंगे, उसको मेल आता रहेगा कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे अप्रूव हुआ है, कि जो भी है उसको मेल आते रहेंगे, ऑटो जनरेटेड ईमेल्स। नहीं नहीं, कोई ईमेल तो सर अलग आते रहेंगे। जैसे मान के चलो मैं गूगल ड्राइव पे आपको एक्सेस देता हूँ किसी चीज का, तो आपको मेल आ जाता ना कि प्रिंस शेयर्ड हाँ, फाइल और डॉक्यूमेंट विद यू, ऐसा टाइप का। मैं वही बोल रहा हूँ ना। अगर आपका एक्सेस मिलता है, आपको हम्म आपके ईमेल आईडी एक ग्रुप के अंदर ऐड होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑटो जनरेटेड एक मेल आएगा कि आप इस ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हो करके। अगर जी आपको सर। निकाल देते हैं तो भी वैसे ही आएगा कि आपका परमिशन रिवोक हो गया है करके। वही वही वही। ओके, सो क्रिएट ऐप कैसे करते Okay, हैं? sir. गो टू Sir, वर्कस्पेस, and go to workspace. Click on create app. राइट टॉप, क्लिक ऑन क्रिएट ऐप, App. गिव ए नेम, Yes, sir. गिव ए Description. डिस्क्रिप्शन, ओके। ये दोनों आपके Yes, sir. सेटअप स्टेप है। सर ये जो ऐप क्रिएट करना, ये मतलब डेवलपर का काम होगा या फिर एडमिन का काम होगा? डेवलपर का होगा। ओके सर। ओके, डेव में आप करोगे, यूआईटी और प्रोडक्शन आपके पास एक्सेस नहीं है, तो वो यस करेगा। सर। ओके ओके सर। सर इधर भी उनको गाइड करना पड़ेगा या फिर वो करेंगे? गाइड कर, अगर वो पूछेंगे तो गाइड करोगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं करोगे। आप पूछेंगे मोस्टली, उनको क्या पता कौन सा रिपोर्ट शेयर करना है, कौन सा रिपोर्ट शेयर नहीं हम्म करना है। ओके ओके डेफिनेटली सर। दे विल आस्क यू नो। ओके सर। सेटअप किया, उसके बाद कंटेंट, ऐड कंटेंट, ऐड ऑल द रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स, ऑडियंस, we can create multiple audience, we can hide the reports. Okay. फॉर एग्जाम्पल, आपने आप पब्लिश किया तो इमीडिएटली आपको वहां पे कॉपी लिंक करके ऑप्शन आ रहा है, तो आपने कॉपी करके भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको क्लोज कर दिए, ये वाला क्लोज हो चुका है। अभी फिर से आपको लिंक निकालना है, कैसे निकालोगे? ये वाला क्लोज हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द सेम वर्क स्पेस, ओके, यू कैन क्लिक ऑन अपडेट ऐप। अभी यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल सी समथिंग कॉल्ड कॉपी लिंक, दिस इज द सेम लिंक, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. ओके, Yes. तो वर्क स्पेस के अंदर अपडेट ऐप में जाओगे, तो सेटअप में जाओगे, तो एट द बॉटम यू विल सी द सेम लिंक अवेलेबल। इसको कॉपी करना है, बस भेज देना है।
Now the question, one more question may come in interviews. In a one single workspace, आप कितने ऐप बना सकते हो? In a single workspace, you can create only one app. One app. You cannot create more than one app. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Right. You can create multiple audience, but you can create only one One app single app. One up for, yes, sir. per workspace. So, like, if someone asked what is app, the Power BI, so like, App is a मतलब what you can say is it is a place where you can add multiple reports and we can share with the end users by a single link. From one workspace, if you want to share multiple reports as a single link, we will create the app. okay, sir. It is a feature in Power BI which helps us to combine multiple reports together into a single link. Okay? Yes, sir. Yes, sir. सर तो जनरली मतलब जो प्रोडक्शन वर्क स्पेस होगा उसी में ऐप बनता रहेगा ना, लाइक डेव और यूएटी में इतना तो नहीं बनता रहेगा शायद. Dev or UAT में you will test it whether app is working properly or not. Okay, okay. Okay, but you will be sharing from production only. Yes. ठीक है? Any other questions? No, sir. Right, that is all about sharing your reports. Report with end users. Right. Now the last thing is licenses. Okay, majorly we have pro and premium. Sometimes question may come, what is the difference between a pro license and premium license? Okay, so first major difference is schedule refresh can be done 8 times a day max. Premium में schedule refresh can be done 48 times a day. Okay, if I show you, अगर आपको वर्कस्पेस को प्रीमियम में करना है, राइट नाउ दिस इज नॉट इन प्रीमियम, ओके, दिस इज इन प्रो. अगर आपका वर्कस्पेस प्रीमियम में, यू विल सी लाइक दिस डायमंड आइकॉन्स यू विल सी. ठीक है? Okay, sir. Okay, so for example, this one, this is we are in premium. Okay, if you see here, Power BI premium per user बोल रहा है, right? So this is in premium. So when I go to the data set here, schedule refresh के लिए, and if I click on refresh, if I add this one, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप 48 टाइम्स ऐड कर सकते हो. मतलब हर एक आधे घंटे में यू कैन डू द रिफ्रेश. Okay, sir. ओके, बट इफ यू गो टू ए प्रो वर्कस्पेस, अगर मैं प्रो वर्कस्पेस में जाता हूँ, जैसे कि ये वाला, यहाँ का कोई भी डेटा सेट में जाके, मतलब सिमेंटिक मॉडल में जाके, इफ आई ओपन द रिफ्रेश, केवल 8 बार. you can do only 8 times. Yes, sir. Let's go to a different report. Okay, so if I add 1 2 3 4 5 6 7 and 8, उससे ज्यादा हम ऐड नहीं कर पाएंगे. ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Right. Okay, sir. उसके बाद सिमेंटिक मॉडल का साइज, वन जीबी से कम होना चाहिए. उससे ज्यादा होगा तो आपका स्केड्यूल रिफ्रेश फेल हो जाएगा, रिफ्रेश नहीं होगा अगर आपका सिमेंटिक मॉडल का साइज 1 GB से ज्यादा है.
तो साइज कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं होगा। हाँ जी तो साइज आप चेक कर सकते हो, जनरली ज़्यादा नहीं होता है, बट यू कैन कम हम्म, हियर। सिमेंटिक मॉडल स्टोरेज फॉर्मेट है ना, यहाँ पे आप यस सर। देखोगे दिस इज अप टू 1 MB। ये भी। ओके। जब मतलब जब बहुत ज़्यादा डेटा आता है, धीरे धीरे आता है, जब तक ये 1 GB तक नहीं जाता है आपका शेड्यूल रिफ्रेश काम करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक बार ये 1 GB क्रॉस कर गया, देन आपका शेड्यूल रिफ्रेश फेल हो जाएगा, आपको एक ऑटो जनरेटेड मेल आएगा कि मेमोरी आपका 1024 MB से ज़्यादा हो चुका है, सो अपग्रेड दिस टू प्रीमियम। ओके। सो वंस यू गेट दैट ईमेल, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिन के साथ टिकट रेज करना पड़ेगा कि ये वाला वर्क स्पेस को आप प्रीमियम में कन्वर्ट करो। सो दे अच्छा। हैव डिफरेंट प्रोसेसेस, हियर आल्सो वी कैन डू, बट यू विल नॉट हैव एक्सेस। आप वर्क स्पेस सेटिंग्स में जाओगे, लाइसेंस इन्फो में जाओगे, एंड यहाँ पे प्रो है करंट लाइसेंस, ये हम लोग एडिट करते हैं, प्रीमियम पे जाते हैं। पैसा लगेगा अपग्रेड करने का। हाँ हाँ, मतलब ये तो हमारा फ्री हाँ। है, यू कैन यूज इट, बट इन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, प्रीमियम के लिए दे माइट हैव ऑलरेडी पेड सम चार्जेस। ओके। और प्रीमियम का बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये है 1 GB तक, एंड प्रीमियम में आई थिंक इट विल गो अप टू 100 TB। वी कैन सर्च दिस वन, बट आई थिंक इट कैन गो अप टू 100 TB तक ये जाएगा। उसके बाद प्रो में ऑल द यूजर्स नीड लाइसेंस, मतलब मैं अगर प्रो वर्कस्पेस के अंदर से, ये अगर मेरा प्रो वर्कस्पेस है, अगर मैं लिंक को शेयर कर रहा हूँ, या फिर ऐप बना के शेयर कर रहा हूँ, या फिर वर्कस्पेस के अंदर आपको एक्सेस दे रहा हूँ, इन ऑल द 3 केसेस द एंड यूजर शुड हैव द प्रो लाइसेंस। रिपोर्ट ओपन करने के लिए उसके पास प्रो लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है? यस नो? यस सर। मगर Yes, sir. अगर मेरा रिपोर्ट प्रीमियम में है, प्रीमियम वर्कस्पेस के अंदर मेरा रिपोर्ट है, अगर मैं इसको लिंक शेयर करता हूँ, या फिर ऐप बना के ऐप का लिंक शेयर करता हूँ, देन एंड यूजर डजंट नीड ए लाइसेंस। Okay, sir. बिना सर इट्स लाइसेंस के 100 भी GB वो, सर। एक सेकेंड, 100 GB लिखा है क्या? यस सर 100 GB। ओके। सो एंड यूजर को लाइसेंस की जरूरत नहीं है इफ ही इज यूजिंग प्रीमियम। अगर प्रीमियम वर्कस्पेस के अंदर से वी आर शेयरिंग सम लिंक विद द एंड यूजर्स, देन ही डजंट नीड एनी काइंड ऑफ लाइसेंस, डायरेक्टली ब्राउजर में वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो जनरली रियल टाइम में क्या होता है, अगर आप एक रिपोर्ट बनाए हैं और 10 रिपोर्ट है, एंड यू आर शेयरिंग दोज 10 रिपोर्ट्स विथ मे बी 5-6 मेंबर्स या 10 मेंबर्स, तो व्हाट यू विल जनरली डू, यू विल गिव द, मतलब यू विल टेल द क्लाइंट कि इन 10 लोगों के लिए एक्सेस चाहिए, मतलब लाइसेंस चाहिए, सो प्लीज बाय द प्रो लाइसेंस। सबके लिए वो प्रो लाइसेंस खरीदेगा। मगर इफ यू आर शेयरिंग द रिपोर्ट विथ 1000 मेंबर्स, 2000 मेंबर्स, 3000 मेंबर्स, इफ यू आर शेयरिंग, उस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ बाइंग 3000 प्रो लाइसेंसेस, what is the better way, we can upgrade the workspace to premium, that will be cost effective। यस सर। ठीक है? Yes, यस sir. नो? यस सर। गॉट इट सर। Yes, जनरली sir. प्रो लाइसेंस का कॉस्ट कितना होता है, $9 पर मंथ। पर पर्सन पर मंथ। पर मंथ। प्रीमियम कैपेसिटी मतलब वर्कस्पेस का जो प्रीमियम कैपेसिटी है, ये लोग वो रैम के जैसा खरीदते हैं। ओके, इट विल बी समवेयर अराउंड $25,000 पर मंथ या पर ईयर, आई एम नॉट श्योर। ओके, इट तो इज वेरी यार एक्सपेंसिव। सर अभी 2500। पर मंथ मतलब पर यूजर पर मंथ को नहीं नहीं, $14। पर यूजर नहीं, ये यूजर नहीं है, ये पर एंटायर कंपनी, जैसा सर मैं रैम होता है क्या ना, बोल रहा हूँ, हाँ। सर उसके प्रो का लाइसेंस कॉस्ट बोल रहा हूँ, अभी $14 हो गया। हाँ अपग्रेड हो गया ओके, वो। मे बी। ओके, तो प्रीमियम कैपेसिटी का
दिस इज दिस मच। सिमिलरली एक और है विच इज कॉल्ड प्रीमियम पर यूजर। इसके अंदर सेम प्रीमियम के जो कैपेसिटी के फीचर्स ही होंगे। जनरली ये क्यों लेते हैं, ये रिसेंटली मतलब 5-6 साल हुआ है। वाई दिस लाइसेंस केम इनटू पिक्चर इज, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपनी है जिसमें आपके 4-5 यूजर है, ओके, ओनली 4-5 यूजर्स आर देयर, बट यू वांट द प्रीमियम फीचर, जैसे कि आपका नंबर ऑफ रिफ्रेशेस 8 टाइम से ज्यादा है, ओके, आपका डेटा सेट साइज बड़ा है, 1 GB से बड़ा है, देन यू नीड द प्रीमियम, राइट? Yes, सुनो, sir. तो बट यू कैन नॉट स्पेंड दिस मच अमाउंट बिकॉज यू आर नॉट ए दैट मच बिग कंपनी। तब आप क्या करोगे, प्रीमियम पर यूजर के लाइसेंसेस यू कैन परचेज। आप 5 यूजर्स आर देयर, यू कैन बाई 5 प्रीमियम पर यूजर लाइसेंसेस। तो उसका कॉस्ट में भी समवेयर अराउंड, पहले 18 कुछ था, अभी में भी इट माइट हैव गॉन टू 25 समथिंग। Mhm. ओके, सो इट इज लाइक जनरली जैसे हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अगर आप वो प्रीमियम वाला लेते हो कि एक ही लाइसेंस से, एक ही सब्सक्रिप्शन से यू कैन यूज इट इन मल्टीपल डिवाइसेस, राइट? Yes, sir. तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा ना। अगर आपके घर में Mhm. 4-5 लोग हैं, एवरीबडी वांट्स टू यूज दैट वन, सो यू विल बाय दैट वन एंड यू कैन शेयर एवरीबडी, बट अंदर का कंटेंट सेम ही होगा सबके लिए। हाँ, बट आप सिंगल पर्सन हो, आपको मोबाइल पे ऊपर ही देखना है, देन व्हाई यू विल टेक दैट वन, यू विल टेक द लोएस्ट वन। नो, एक डिवाइस का लाइसेंस आप लोगे, राइट? yes, sir. बट कंटेंट तो सेम ही मिलेगा आपको अंदर। Mhm. सो दैट Yes, इज द sir. डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम कैपेसिटी एंड प्रीमियम पर यूजर। ये एक बार चेक कर लेना थोड़ा, मतलब मे माइट हैव अपग्रेडेड, पहले 18 था, 18 की 20 था, माइट हैव ये इंक्रीज हुआ है, मतलब ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है। Yes, sir. सर $24 है प्रीमियम पर यूजर का कॉस्ट। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। यस सर। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड प्रीमियम, दे मे आस्क। Yes, sir. ठीक है, देन वन मोर लास्ट थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। रिपोर्ट जो है, वी क्रिएट, Combination of dashboard. नहीं, रिपोर्ट इज समथिंग वी क्रिएट यूजिंग EVA डेस्कटॉप। अभी तक हमने जो भी बनाया है, एवरीथिंग ऑल आर रिपोर्ट्स। Yes, sir. डैशबोर्ड क्या होता है, built in PBI service on top of multiple reports। रिपोर्ट के ऊपर डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कि सर डैशबोर्ड से रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट से नहीं, डैशबोर्ड, रिपोर्ट मैं से कंफ्यूज डैशबोर्ड हो बनता गया। है, रिपोर्ट से डैशबोर्ड बनता है। अच्छा। ओके, जैसे यहाँ पे एक डैशबोर्ड है, लेट मी डिलीट दिस वन। ओके, अभी मेरे पास कितने रिपोर्ट है, 1 2 3 4 रिपोर्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल देर इज ए CEO ऑफ द कंपनी, या फिर लीडरशिप टीम में कोई है, ओके, उसको एक डैशबोर्ड चाहिए। वो क्या बोलेगा, इसके अंदर वी हैव मल्टीपल पेजेस, राइट? 5-6 पेजेस आर देयर, इसके अंदर 5-6 पेजेस आर देयर, इसके अंदर 2-3 पेजेस आर देयर, इसके अंदर 5-6 पेजेस आर, टोटल मे बी 20-30 पेजेस आर देयर। ओके, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. बट उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर रोज वो 30 पेजेस को चेक करे। ही विल नॉट हैव दैट मच टाइम, राइट? यस सर। यस सर। बट बट कुछ कुछ केपीआई है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट विजुअल्स है जिसको वो देखना चाहता है हर रोज, वो सारे एक रिपोर्ट में नहीं है। दो दो विजुअल इस रिपोर्ट में है, एक विजुअल इस रिपोर्ट में है, दो विजुअल इस रिपोर्ट में है। फॉलोइंग? Yes, yes, sir. तो वो क्या बोलेगा कि ये सारे एक जगह पे रख के मुझे एक लिंक शेयर करो। तो वो कैसे करते हैं, अब ये रिपोर्ट है कोविड एनालिसिस, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर मे बी आई विल गो टू दिस पेज। यहाँ पे मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मतलब द वन विच ही वांट्स टू सी, भाई नंबर्स आर नॉट कमिंग, मे बी आई, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये वाला, इसमें से मे बी दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। ओके, एक्टिव केसेस या फिर टोटल डेथ्स इज इम्पोर्टेंट, दिस टू आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेज।
तो मैं क्या करूंगा, हर एक विजुअल के ऊपर यू विल सी समथिंग कॉल्ड पिन विजुअल ऑप्शन, राइट? Yes, sir. तो आपको क्या करना है, बस वो पिन विजुअल के ऊपर क्लिक करना है एंड इट विल आस्क यू कि नया डैशबोर्ड बनाना है, एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में जोड़ना है। हमारे पास एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड कुछ भी नहीं है, सो आई विल गो विद न्यू डैशबोर्ड एंड आई विल से डैशबोर्ड। ओके, नाम दे रहा हूँ, डैशबोर्ड करके नाम दे रहा हूँ, आई एम, एंड देन क्लिक ऑन पिन। तो क्या होगा, एक डैशबोर्ड बन जाएगा जहां पे वो विजुअल पिन हो जाएगा। इफ आई गो टू डैशबोर्ड यू विल सी ओनली वन विजुअल इज अवेलेबल देयर, जो कि टोटल डेप्थ है। ठीक है, नंबर इट विल कम, मे बी सम इशू। ठीक है, जो भी विजुअल हम लोग वहां से पिन करते हैं, दैट विजुअल विल बी पिन्ड टू द डैशबोर्ड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली यू कैन गो टू अदर रिपोर्ट्स ऑल्सो, जैसे कि लेट्स गो टू द अदर रिपोर्ट, मे बी आई विल गो टू सेल्स एनालिटिक्स। इसमें से मे बी दिस वन इज इंपॉर्टेंट, डोनट चार्ट इज इंपॉर्टेंट। आई विल क्लिक ऑन दिस वन। नाउ आई विल से एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड, बिकॉज हमने एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, राइट? वो Yes, sir. एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड अगर 3-4 है यहाँ पे, वो ड्रॉप डाउन में वो 3-4 आएंगे। किसके साथ आपको लिंक करना है, वो डैशबोर्ड आप सिलेक्ट करोगे एंड क्लिक ऑन पिन। सो नाउ दिस विल ऑल्सो बी पिन्ड टू दैट डैशबोर्ड। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट कमिंग, बट नंबर दिख रहा है 713 के, यहाँ पे नहीं आ रहा है, मे बी सम अदर इशू। ओके, बट बेसिकली एवरीथिंग विल कम अप हियर। ये एक दूसरे रिपोर्ट से आ रहा है, ये एक दूसरे रिपोर्ट से आ रहा है, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, for example, maybe I will go to another report. यहाँ से maybe this one is important for me. So I will click on this pin visual, existing dashboard and pin. So all the visuals जो भी important है मेरे लिए, that I am taking. Why it is not showing? I think इसका font white color था, right? इसीलिए sir. Yes, sir. हाँ, Font white color इसका था. font Black white color. था शायद, हाँ, that is the reason it is मतलब overlap हो रहा है। Yes, sir. ओके, बट दैट इज द थिंग, आप जो भी रिपोर्ट से कोई भी विजुअल आप लाके डैशबोर्ड के साथ आप पिन कर सकते हो। सो जो लीडरशिप टीम में है या फिर सीईओ वगैरह है, वो क्या करेगा, ये वाला रिपोर्ट ओपन करेगा, ये वाला लिंक ओपन करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए वो सब देखेगा, वो बंद कर देगा। ठीक. क्लियर? नो नीड टू गो थ्रू मल्टीपल रिपोर्ट्स, ओनली Yes, sir. व्हाट आर इंपॉर्टेंट फॉर हिम, ही कैन लुक एट दैट वन एंड देन ही कैन क्लोज। अगर उसको मोर एनालाइज करना है, जैसे कि ये वाला कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे उसको कुछ गड़बड़ दिखा एंड ही वांट्स टू एनालाइज मोर, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से रिपोर्ट से आ रहा है? फ्रॉम हियर ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? बट व्हेन ही क्लिक ऑन दिस वन, अगर ये विजुअल के ऊपर वो क्लिक करता है, तो ऑटोमेटिकली ही विल बी टेकन टू द रिपोर्ट फ्रॉम वेयर दिस विजुअल हैज बीन टेकन। ठीक है? Yes, sir. Okay. विजुअल के ऊपर जब क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली वो विजुअल कहां से लिया गया है वहां पे पहुंच जाएगा। देन ही कैन डू मोर एनालिसिस इफ ही वांट्स। फॉलोइंग? Yes, sir. सो दैट इज ए डैशबोर्ड। अगर मैं यहाँ पे आपको लीनेज व्यू दिखाता हूँ वर्कस्पेस के अंदर आके, इफ आई क्लिक ऑन दिस लीनेज व्यू, नाउ यू कैन सी ये जो डैशबोर्ड है, इट इज बिल्ट ऑन 3 डिफरेंट रिपोर्ट्स, राइट? ऐसा नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये जो रिपोर्ट है, इसका सिमेंटिक मॉडल है, इसका डेटा कहाँ से आया है, सीएसवी फाइल से आया है। ये वाला डैक्स जो रिपोर्ट है, ये भी वहीं से आया है। ओके, 2 डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है, एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल से आ रहा है, एक सैम्पल सुपरस्टोर से आ रहा है। और ये नीचे का जो सेल्स एनालिटिक्स है, इसका डेटा सोर्स कहाँ से आ रहा है, सीक्वल सर्वर से। सो लीनेज व्यू मतलब इट विल शो यू द फ्लो, कहाँ से डेटा आ रहा है, देन रिपोर्ट कैसे बना है, उसके ऊपर डैशबोर्ड कैसे बना है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू कैन सी इट इन द लीनेज व्यू। yes, sir. ठीक है, दिस इज द लिस्ट व्यू एंड दिस वन इज द लीनेज व्यू। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay, I think that's all I wanted to cover. Any questions? No, sir. Power BI सर्विस में आपका ज्यादा काम नहीं होगा, but still you need to know all these things. Yes, Okay, sir. if you ask me,
पावर सर हमारा क्वेरी काम फिर रहेगा किस, मतलब हमारा काम मेन डैशबोर्ड बनाने में रहेगा। पावर पिवोट, एक सेकंड, ओके। पावर व्यू, पावर व्यू सर्विस। तो पावर व्यू क्वेरी का आपका काम मे बी इट विल बी 5%, पावर पिवोट का काम मे बी इट इज 40%। पावर पिवोट मतलब डेटा मॉडल एंड डैक्स, ठीक है। यस सर। पावर व्यू में आपका काम इट विल बी अराउंड 40%, this may be 10%, maybe this I can make it 45, ठीक है। यस Yes, sir. आपका ज्यादा काम पावर पिवोट एंड पावर व्यू में होगा। मे बी दिस कैन बी 45, दिस कैन बी 40, मतलब इन दोनों के बीच में इट विल बी अराउंड 85% ऑफ द वर्क। यस सर। अगर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, देन आपका पावर पिवोट का काम कम हो जाएगा, पावर व्यू का काम ज्यादा हो जाएगा। पावर क्वेरी का काम आपका बहुत ही मिनिमल रहेगा, क्योंकि ऑल दिस थिंग्स विल बी ऑलरेडी डन इन द डेटा इंजीनियरिंग पार्ट। ओनली वो जो पैरामीटर बनाना है वो चीज आपको बनाना है, ओके, और ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। पावर पिवोट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना है, देन आपका पावर पिवोट डैक्स का काम बहुत ज्यादा रहेगा। अगर ज्यादा नहीं है वहां पे कॉम्प्लेक्स, देन आपका पावर व्यू में ही सारा काम होगा। पावर बेस सर्विस में आपको क्या करना है, बस रिपोर्ट को पब्लिश करना है, ऑटोमेट करना है, शेयर करना है, Okay, sir. यस सर। Okay, so ठीक है। Yes. एनीथिंग एल्स यू वांट टू चेक? दैट्स No, ऑल, sir. पावर पे हो गया हमारा। Sir, there are different modes in Power BI. Can you tell about हाँ, that? we have different modes of connectivity, okay. I think this question I asked you guys, मैं guys कि आपको ये करके बताने को, कोई बताया नहीं। Import, direct query and live, okay। अभी तक हमने जो भी किया है that is called import mode। जब हम लोग डेटा को ला रहे थे, here Yes, we are sir. connecting import, right? Yes, sir. तो अभी तक हमने जो भी किया है all are import mode, and in real time आपका 95% of the cases it will be import mode only। Yes, sir. हमेशा आप import mode में ही काम करोगे। डायरेक्ट क्वेरी का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे कि मतलब you are not bringing the data inside Power BI। import mode में you are importing the data into Power BI, Yes, sir. okay। let me tell you। बट सर अगर रिपोर्ट हम डाउनलोड करके किसी को शेयर करेंगे, मतलब जो ये फाइल होती है, मतलब ये पावर बीआई वाली, तो फिर तो उसमें डेटा चला ही जाएगा, नहीं जाएगा हाँ, उसमें भी नहीं जाएगा? इंपोर्ट मोड में जाएगा ना। नहीं इंपोर्ट नहीं, मोड में आपका इम्पोर्ट में डेटा, नहीं। हाँ मतलब डायरेक्ट क्वेरी मोड में सर। हाँ, डायरेक्ट क्वेरी में आपका डेटा इसके पास आएगा ही नहीं, पावर BI के अंदर आएगा नहीं। ये एक कनेक्शन बनाएगा, एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाएगा डेटाबेस के साथ। जैसे अभी मैं डायरेक्ट क्वेरी ले रहा हूँ, मैंने क्लिक ऑन ओके, सेम जैसे दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है, राइट। सो आई विल गो टू दिस वन, मे बी आई विल सेलेक्ट फैक्ट इंटरनेट सेल्स एंड डिम प्रोडक्ट, दो टेबल लेते हैं, ठीक है। मैंने क्लिक ऑन लोड, देख के पता नहीं चल सकता कि मतलब हमने कौन सा मोड यूज किया यार, जिस नहीं दिन पता बनाई चलेगा, रिपोर्ट? पता चलेगा, कब पता चलेगा? नाउ इफ यू सी आपका डेटा व्यू, टेबल व्यू दिख ही नहीं रहा है, अच्छा हाँ। राइट, क्योंकि आपका डेटा यहाँ पे है नहीं। यस सर। आप जब मॉडल व्यू में जाओगे, दिस विल बी इन ब्लू कलर, ओके। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट क्वेरी मोड है, यू कैन नॉट सी द डेटा, डेटा इज नॉट इंपोर्टेड इनटू योर पावर BI, यस सर। ठीक है। तो आप बना सकते हो सारे विजुअल जैसे आप लोग बनाते हो नॉर्मल में, इन द सेम वे यू कैन क्रिएट द विजुअल्स हियर आल्सो।
बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट क्वेरी में 2-3 प्रॉब्लम्स है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? फर्स्ट थिंग इज आपका डेटा लोडिंग, मतलब डेटा रिफ्रेश जो होता है या फिर आपका परफॉर्मेंस जो होता है, दैट विल बी वेरी वेरी लेस व्हेन कंपेयर टू इंपोर्ट मोड। इंपोर्ट मोड का परफॉर्मेंस विल बी मच मोर हायर व्हेन कंपेयर टू डायरेक्ट क्वेरी। क्यों? क्योंकि डेटा आपका लोकल में है। जब इंपोर्ट करते हो डेटा आपके पास है तो बहुत जल्दी वो काम करेगा। बट डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है, हर बार ये क्या करेगा, आप अगर यहाँ पे एक स्लाइसर है, मैं जब कुछ सेलेक्ट करूंगा, ये क्या करेगा, हर बार जाके डेटाबेस के साथ हिट करेगा, वहां से डेटा लाएगा। सो इट विल टेक लिटिल टाइम। Yes, sir. When you have huge amount of data, it will take little time. So direct query will be much more slower when compared to import mode. That is one drawback. सेकेंड ड्रॉबैक क्या है ना, यहाँ पे आप ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस हो गया, बहुत सारे फंक्शंस, यू कैन नॉट यूज इट हियर। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन वैसे करना है डायरेक्ट मोड में, यू विल नॉट बी एबल टू डू। आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा इंजीनियर को बोलना पड़ेगा ये सारे कैलकुलेशन आप बैकएंड में बना के मुझे दो, मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ओके ठीक सर। है। Yes, sir. डायरेक्ट क्वेरी मोड में पावर बी डेवलपर का काम विल बी वेरी वेरी मिनिमल, क्योंकि वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करे, उसका सिर्फ काम पावर व्यू का ही होता है और कुछ नहीं होता है। बाकी सब कुछ डेटा इंजीनियर बना के उसको देना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, दैट इज द सेकेंड ड्रॉबैक। बट देर आर सम मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स आल्सो देयर। पॉजिटिव पॉइंट मतलब क्या है, अगर आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, ओके 1 GB से ज्यादा है, आप इंपोर्ट मोड करोगे, आपका डेटा इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है। Yes, sir. योर डेटा इज ह्यूज, आप अगर इंपोर्ट मोड करोगे, आपका डेटा पावर बीआई के अंदर आएगा ही नहीं, इट विल फेल। ठीक है। इन दैट सिचुएशन यू हैव टू गो विद डायरेक्ट क्वेरी मोड, नो अदर ऑप्शन। Yes, sir. एक और फीचर है, जैसे कि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है डेटाबेस में and they don't want to share that data out of their database. डेटाबेस से बाहर डेटा जाना ही नहीं है। ओके, सिक्योरिटी पर्पस, कंप्लायंस पर्पस, जो भी होता है, देन दे विल टेल यू नो नो आई कैन नॉट गिव माय डेटा। मैं डेटा आपको इंपोर्ट मोड में लेना नहीं देना चाहता हूँ, आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेरी में कनेक्ट करके ही रिपोर्ट बनाना है। ठीक है। Yes, यस sir. सर। Okay, so this is the difference between direct query and import mode. There is one more mode called live connection. Live connection क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया है, राइट? कुछ रिपोर्ट हमने पब्लिश किया है, उसका एक सिमेंटिक मॉडल है, राइट? अभी हमने ये सारे रिपोर्ट पब्लिश sir. किए हैं, राइट? यस तो सर। इसके अंदर ये जो सिमेंटिक मॉडल में डेटा ऑलरेडी है, राइट? यस सर। यस सर। इसके अंदर मैंने कैलकुलेशन भी बहुत बनाया है, जैसे डैक्स हो गया, इसके अंदर बहुत सारे डैक्स कैलकुलेशन बनाए हैं। ठीक है। सेम Yes, डैक्स sir. कैलकुलेशन मुझे एक और रिपोर्ट में भी यूज करना है। ठीक है। जो भी कैलकुलेशन मैंने बनाए हैं, वो सारे कैलकुलेशन मुझे एक और रिपोर्ट में भी चाहिए, तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इसको ही कनेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा, यहाँ पे गेट डेटा में जाके आई विल गो विद पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल। ओके, इसका डेफिनेशन क्या आ रहा है, क्रिएट ए लाइव कनेक्शन, राइट? यस सर। Let us go with a new file. Okay, get data, पावर बाई सिमेंटिक मॉडल। अभी मुझे जितने सारे सिमेंटिक मॉडल के एक्सेस होते हैं, वो सारे सिमेंटिक मॉडल विल बी विजिबल हियर, जो हमने पब्लिश किया है अभी। ओके, so these are the semantic models which we have published, right? Yes or no? Yes, sir. So I want to connect to this semantic model. इसके साथ कनेक्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। तो उस सिमेंटिक मॉडल में जो भी डेटा मॉडल बना है, जो भी नया कैलकुलेशन बने, एवरीथिंग विल कम इनटू माय न्यू रिपोर्ट। तो लाइव कनेक्शन में भी आपको
कुछ नया कैलकुलेशन नहीं बनाना पड़ता है आपको, सिर्फ ये देखो मैंने कुछ मेजर्स नहीं बनाया बट एवरीथिंग इज कमिंग अप हियर, राइट? Yes, sir. ओके, सो आई कैन यूज डायरेक्टली इन माय रिपोर्ट, फिर से मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर एक नया कैलकुलेशन बनाना है इस रिपोर्ट में, वो भी आपको वापस उसमें जाके बना के उसको पब्लिश करके फिर से उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन दैट सिमेंटिक मॉडल। Yes, sir. ओके, यस सर नो? इज Yes, दिस sir. जस्ट लाइक Yes, sir. रेफरेंस करते हैं हम लोग पावर पिवोट में जो रेफरेंस का करते हैं नहीं समझा। सर, मतलब ये जस्ट लाइक ये पावर पिवोट में हम लोग देखिए हम वी हैव द डिफरेंट ऑप्शंस लाइक डुप्लीकेट और रेफरेंस करके एक ऑप्शन भी है ना सर, टेबल को रेफरेंस पावर करके। क्वेरी में, हाँ। यस सर, पावर क्वेरी में। हम्म। सर तो उसमें जैसे रेफरेंस में कुछ भी चेंजेस करने से मेन टेबल को कुछ इफेक्ट नहीं होता, बट डिफरेंस मेन करने से टेबल, इफेक्ट होगा। सर मेन टेबल में करने से ना इसमें हाँ हाँ हाँ, ये मेन होगा। टेबल में करने से रेफरेंस में इफेक्ट यस होगा, सर। हाँ। सर रेफरेंस में करने से मेन टेबल को तो नहीं होता नहीं है ना? होगा, हाँ हाँ हाँ। सर, वो ये भी वैसे ही है क्या? ये भी वैसा ही है बट विजुअल के लिए, बट आप यहाँ पे नया मेजर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो एंड इट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। अगर आपको यहाँ पे कुछ नया मेजर बनाना है, आप यहाँ पे नहीं बनाओगे, आप फिर से वापस जाओगे, वो सिमेंटिक मॉडल, इसको ओपन करोगे, इसके अंदर आप नया मेजर बनाओगे, फिर से इसको यहाँ पे पब्लिश करोगे एंड देन यू विल रिफ्रेश दिस रिपोर्ट। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पे वो वाला नया मेजर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेरी, लाइव कनेक्शन बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे सिर्फ विजुअल्स ही आप बनाते हो, आप नया कैलकुलेशन कुछ भी नहीं बनाते हो। अगर नया कैलकुलेशन बनाना है डायरेक्ट क्वेरी में, डेटाबेस में बनाना पड़ेगा। अगर लाइव कनेक्शन में नया कैलकुलेशन बनाना है, वो जो डेटा सेट आप ला रहे हो वहां पे बनाना पड़ेगा। ओके क्लियर? सर। ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इंटरव्यू पर्पस, बट आपका 100% ऑफ द काम मोस्टली आपका इंपोर्ट में ही होगा। ठीक है? Yes, sir. But interview point of view, this is a good question, important question. What is the difference between import mode and direct query mode? Okay, sir. Okay. Any Yes, other sir. questions? No, No, sir. sir. So what do you feel? और bit easy है, difficult है? देखो मैंने जितना सिखाया है ना, that is मतलब इट इज लाइक अप टू 6-7 years एक्सपीरियंस के लिए जितना चाहिए, ऑल दो थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, बट आप जब रियल टाइम में मतलब आपके लेवल पे जब जाओगे, मे बी इसमें से ज्यादा यूज ही नहीं करोगे, बहुत सारे चीजें यूज नहीं करोगे। जो मैंने वेरिएबल सिखाया आपको, ओके, द कैलकुलेट फंक्शन हो गया, सम फंक्शन हो गया, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, visualization Okay, में sir. also we have learned mostly all the things. Okay, visualization anyway it is for everybody. Okay, आप 1 year sir. experience हो, 10 year experience हो, उतना ही चाहिए आपको। एक्सपीरियंस कहाँ पे काउंट होता है? पावर बी सर्विस में और डैक्स में। These are the two places where we can show that we are having superior knowledge than others. Power BI service में whatever we have learned, no, most of the people don't know. डिप्लॉय कैसे करते हैं, पैरामीटर्स कैसे चेंज करते हैं, ओके, प्रीमियम का क्या है, ऐप कैसे बनाते हैं, ऑडियंस कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ऑल दो थिंग्स मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन विद 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस डोंट नो। अभी अभी दे आर लर्निंग बट डोंट नो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यू हैव लर्नड वेरी वेरी एडवांस्ड लेवल। ओके, इसमें से अगर 70% आपको अगर आता है, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। Okay, sir. बट आपका मेजर फोकस कहाँ पे होना चाहिए? डैक्स पे होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। बाकी सब कुछ सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. अदर देन डैक्स, पावर क्वेरी हो गया, पावर व्यू हो गया, पावर बेस सर्विस हो गया, डेटा मॉडल हो गया, ये सारे इसमें कुछ नहीं है। आपको बस जानना है ऑप्शन कहाँ पे है, उसका यूज क्या है। दिमाग कहाँ पे लगता है? डैक्स की Yes. जगह पे That's लगता me. Yes, sir. है। ओके, वही सो हार्ड है सर, हाँ, थोड़ा दैट सा। इज ओनली द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर।
बाकी सब कुछ ना आप थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो हो जाएगा। सिर्फ डैक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, okay, then let's close for today. I hope you are working on the project. We will try some time, someday in the evening, and we will review it. Okay, sir. हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका प्रोजेक्ट? ये सर हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता है। सर, ओके, हो गया है। यस या Yes, नो, sir. दो ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है। 100% कंप्लीट और नॉट कंप्लीट। ठीक है? रियल टाइम में नोबडी विल लिसन टू ऑलमोस्ट हो गया, वो लोग सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पे आप प्रेजेंट कर पाओगे एंड यूजर को, सब कुछ खत्म है या नहीं है, दैट्स इट। ठीक है? Yes, sir. ओके सर। राइट, ओके, लेट्स मीट समडे टू रिव्यू द प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। मे बी नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अवर सीक्वल पार्ट, बट लेट्स टेक सम टाइम टू वर्क ऑन दिस वन एंड देन वी विल गो टू द सीक्वल पार्ट। ठीक है? Yes, sir. ओके सर। राइट, एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स बिफोर वी क्लोज फॉर टुडे? सर मतलब पावर BI खत्म हो गया तो मतलब अभी ये प्रोजेक्ट चलेगा और ये प्रोजेक्ट आपको पहले खत्म करना है, देन आई विल गिव अनदर प्रोजेक्ट। ओके, ये दो आपको खत्म करना है। ये दो आप रेज्यूम के ऊपर रख सकते हो, बोल सकते हो ये दो मैंने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है? Yes, sir. दिस टू आर रियल टाइम प्रोजेक्ट जो मैंने ऑलरेडी किया है पास्ट में, जस्ट मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मैंने आपको दिया है। ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके देन, हाँ, आई एम क्लोजिंग फॉर टुडे, वी विल सी अगेन। Thank you, sir. या, थैंक यू, बाय।